Good morning, students. Today we are going to do pronouns and their correct usage. We have already done personal pronouns, we have done relative pronouns, we have done indefinite pronouns, we have done reflexive pronouns. Now we will do these demonstrative pronouns, interrogative pronouns, intensive pronouns, reciprocal and distributive pronouns. These are left, and today we will finish this chapter pronouns. Personal pronouns already we have done, reflexive pronouns, indefinite pronoun, relative pronoun. Okay, now today we will start with interrogative pronoun. The main interrogative pronouns are what, which, who, whom, whose. Okay, and the less common interrogative pronouns when we add the suffix like whatever, whichever, whatsoever, whichsoever. These are also interrogative pronouns which are less used. Through this chart it will be very clear, like who is used for people. When we say subject, verb, object. When we have to use for subject, people. Like Ram is a doctor. Who is a doctor? So we will say Ram. So Ram subject है इसलिए. Whom when people are in the place of object. Which for animals and objects. Whose for possession संबंध के लिए. Where place के लिए. When time के लिए. Why reason के लिए. What question about things. And how about the manner तरीका कैसे करते हैं. This chart is very important for comprehension also. When you do the comprehension, if you know all the meaning properly, then only you can write the answers also. Now we come over to the demonstrative pronoun. This is very simple. Demonstrative pronoun, this, that, these, those. Okay. Through this chart it will be very clear. Near, far. This singular, these plural. Near. When the things are near, one thing is near, we will say this. Many things are near, then we will say these. And one thing is far, that, and many things are far, those. So these four include demonstrative pronouns. Here one more chart is there. This for which is near, though these which is far away, that one thing which is far, and those many things which are far. Now comes reciprocal pronoun. This may be new to you. You must have heard about it. Now, reciprocal pronoun indicates two or more people carrying out an action of same time. So, see, John and Mary, they love each other. So, John is also loving and Mary is also. They are doing the action of same time. And both are receiving the benefit and the result of that action simultaneously. Anytime something is done or given in return. Like Peter and David hate each other. Peter hates David and David hates each other. तो आदान प्रदान बराबर से. तो उसका इफेक्ट उस पर, उसका इफेक्ट उस पर पड़ रहा है. The 10 prisoners were all blaming one another. All blaming one another. 10 prisoners all blaming one एक दूसरे को. Both teams played hard against each other. Okay, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी. बहुत अच्छा खेला. Clear? तो reciprocal pronoun means जिसमें दो सब्जेक्ट या दो लोग एक ही काम कर रहे होते हैं और जिसका दोनों को बेनिफिट या दोनों को ही उसका रिजल्ट झेलना पड़ता है. लाइक एग्जाम्पल, माई डॉग एंड कैट लव इच अदर. तो ये देख रहे हैं आप एरो से, म्यूचुअल लव. ये उसको प्यार करता है, इसको प्यार करता है. दे ऑल सपोर्ट वन अनदर. अब ये तीन लोग हैं यहाँ पर, तो वन अनदर. दो से ज़्यादा लोगों के लिए, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर. ओके, सो ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको म्यूचुअल है. एक म्यूचुअल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. क्लियर? अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउंस. इन दोनों को इकट्ठे क्यों दिया गया है? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इनका मीनिंग बहुत क्लोज है. रिफ्लेक्सिव आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट इट एंड्स इन सेल्फ और सेल्स, है ना, एंड इट इंडिकेट्स दैट समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन टू, फॉर और अपॉन इटसेल्फ. जब हमारा कोई एक्शन अपने लिए ही हो रहा हो, अपने ऊपर ही हो रहा हो. जैसे जॉय हेल्प्ड हरसेल्फ. तो जॉय ने किसकी हेल्प करी? खुद की. दे पोर्ड सम मिल्क फॉर देमसेल्फ. मिल्क किसके लिए डाला? देमसेल्व्स के लिए. तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. अब इंटेंसिव में क्या होता है? इट एंड्स इन सेल्फ और सेल्फ. सेम उसी की तरह सेल्फ और सेल्फ में एंड होता है. एंड सिंपली एड इम्फेसिस. और ये इम्फेसिस देता है नाउन को या प्रोनाउन को.
ये नाउन या प्रोनाउन पे और जोर डालता है। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द मेयर हरसेल्फ अटेंडेड, तो मेयर ने खुद अटेंड किया कार्निवल, तो इम्फेटिक है, ये इम्फेसिस दे रहा है। फ्रैंक फिक्स द रेफ्रिजरेटर हिमसेल्फ, फ्रैंक ने अपना रेफ्रिजरेटर खुद ही ठीक कर लिया। अगर इफ़ यू ओमिट दिस इंटेंसिव प्रोनाउंस, अगर आप इनको ओमिट कर देते हैं, हटा भी देते हैं, द सेंटेंस विल कंटेन द सेम बेसिक मीनिंग, उसका सेम इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी, ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। किसी किसी जगह पे तो इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी आपको मिलेगा। नाउ कम्स द डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना, आई ऑलवेज टेल यू, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? बांटना। तो इसमें ईच, ईदर, नीदर, ये सब वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब ईच, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसको याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से। बिकॉज दे रेफर टू पर्सन वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम, एक व्यक्ति की बात होती है। नोट दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऑलवेज सिंगुलर, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड एज इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन और वर्ब। तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं, बिकॉज ईच इज सिंगुलर देन वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। एवरी, ईच, ईदर और नीदर। लाइक ईच न्यू डे इज डिफरेंट, देख रहे हैं आप, ईच के संग इज। आइदर गर्ल्स कैन डू दैट, आइदर गर्ल्स कैन डू दैट। नीदर आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इफ दे आर फॉलोड, अभी इनके बाद, ईच के बाद अगर ऑफ आ जाता है, नीदर के बाद ऑफ आ जाता है, ईदर के बाद ऑफ आ जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट विल बी फॉलोड बाय प्लूरल एंड सिंगुलर। नाउ इट विल डिपेंड ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, वी विल सी द सब्जेक्ट। ओके, जैसे ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नॉट ईच ऑफ द आंसर इज करेक्ट। यू फॉलो, ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। अब नीदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू इट, नॉट ईदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू इट। नीदर ऑफ, कोई भी नहीं कर पाई, कोई भी लड़की उसको नहीं कर पाई। अब ये देखिए, ईदर एंड नीदर शुड ओनली बी स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन। जब हम ईदर और नीदर की बात करते हैं तो दो लोग की बात होती है। व्हेन देयर आर मोर देन टू, जब दो से ज़्यादा होंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? एनी, नो वन या नन। ओके, तो ये याद रखना है कि जब टू से ज़्यादा लोग हैं तो हमें एनी, नो वन, नन। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। नन ऑफ द थ्री आंसर्स इज करेक्ट, दैट मीन्स देयर वर थ्री आंसर्स एंड all the answers are wrong, so we will write none of the three answers is correct. Is verb कौन सी आ रही है? is. Because we are talking about one at a time. We invited several friends but none came. None came. Several, बहुतों को बुलाया but none came. कोई भी नहीं आया। नीदर नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड्स है, दो से ज़्यादा हैं। You can take any of the three shirts. Any of the three shirts. यहाँ भी तीन है शर्ट्स, any, कोई भी तीन है। यू कैन टेक ईदर ऑफ द थ्री शर्ट, ये नहीं बोल सकते हम कि इन तीन में से कोई भी ईदर ले लो। ईदर दो के लिए ही आएगा, नीदर दो के लिए ही आएगा ना। देखो, ईच कैन गो इन डिफरेंट पोजीशन। ईच की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज़, समझ में आया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईच ऑफ द बॉयज़, इसीलिए वॉज लगाया। अब आप ये मत सोचना कि बॉयज़ है तो ये प्लूरल हो गया, क्या है? ईच लगाया ना साथ में, तो हर एक लड़का, हर एक लड़के वॉज गिवन अ प्रेजेंट, हर एक लड़के को एक प्रेजेंट दिया गया। द बॉयज़ वर ईच गिवन। अब देखो यहाँ डिफरेंस हो गया। अब यहाँ ईच कहाँ आ रहा है? द बॉयज़ वर, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो बॉयज़ वर गिवन, वर ईच गिवन, यानी इतने सारे लड़कों में सभी लड़कों को एक 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 प्राइज दिया गया। दे हैव ईच बीन टोल्ड, यहाँ पर भी दे हमारा सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? वी हैव टू सी द सब्जेक्ट, देन ओनली वी हैव टू प्रोवाइड द वर्ब। ईच ऑफ देम हैव बीन टोल्ड, ईच ऑफ देम यानी कि ऑल, सभी को बोला गया। वी ईच थिंक द सेम, अब हम लोग वी, हम सब थिंक करते हैं सेम। ईच ऑफ अस थिंक द सेम, हम में से हर एक सेम सोचता है। तो दीज आर द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ईच। ओके, नाउ आई हैव जॉटेड डाउन सम रूल्स, कॉमन रूल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर एडिटिंग इन योर ग्रामर सेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट रूल यही है दैट सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज व्हेन द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज इन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो उसको हम सब्जेक्ट वाले यूज़ करेंगे। जैसे डैश डिड द जॉब, तो आप इसमें लिख सकते हैं आई डिड द जॉब, ही डिड द जॉब, शी डिड द जॉब, वी, कोई भी आ सकता है।
ऑल क्वालिफाई, ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। जो चार्ट हमने पर्सनल प्रोनाउन वाला पढ़ा था ना, उसमें जो नॉमिनेटिव केस वाले प्रोनाउंस थे वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब हम बोलते हैं ये टू बी वाला, ये सेकंड रूल टू बी वाला मैंने आपको बताया था शुरू में पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाते समय कि टू बी के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस आएगा। जैसे इसमें देखिए इट इज़ ही, शी इज़, दिस इज़ शी, इट इज़ वी। ओके, तो ये याद रखना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर आपने इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया तो आपका ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। करेक्शन में भी इस चीज़ का बहुत देखना है, टू बी स्ट्रक्चर्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। नाउ द रूल सरप्राइजेज इवन इंग्लिश लैंग्वेज वॉचर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये रूल्स बहुत कंफ्यूजिंग है। कौन सा रूल है? व्हेन हु रिफर्स टू अ पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, वी, इट टेक्स अ वर्ब दैट एग्रीज विद दैट सब्जेक्ट। अब देखो, ये अभी हम ये इट इज़ लगा रहे हैं, ठीक है, इट इज़ आई, हमने बताया टू बी वाला है कंस्ट्रक्शन, तो इसके बाद हमारा आई आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। अब जब सब्जेक्ट आ रहा है और इसको हम हु, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु ही आएगा क्योंकि पर्सन के लिए हम हु यूज़ करते हैं, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो आई के अकॉर्डिंग आएगी। तो आई के संग क्या आता है? एम, तो इसलिए एम आए। इसमें अगर आपने इज़ लगा दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ हु, इट इज़ यू हु आर मिस्टेक। अब देखो इसमें यू है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, तो यू के हिसाब से हमारी कौन सी आएगी? आर, यू के हिसाब से इज़ नहीं आएगी। क्लियर? तो आपको ये देखना है कि टू बी के बाद हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ये अच्छे अच्छे लैंग्वेज के लोग भी इस चीज़ को गलत कर देते हैं। ओके, देन रूल नंबर 4, इन एडिशन टू द सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब जैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, अब जो हमने बताया था आपको सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस था पर्सनल प्रोनाउन में, वो वाले सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वही सब होते हैं, जैसे मी, हिम, हर सेल्फ, अस, देम, देम सेल्फ, ये सब। जैसे जीन सॉ हिम, ठीक। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें बताई थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउंस वाले को अगर आपको इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो अगेन, and if you have still doubts you please contact me on my WhatsApp number. I will clear all the doubts. Now him is the direct object of the verb saw because it's living being, है ना, तो it is the direct object. Okay, now give her the book. इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, her और the book. Her direct object of give is book, okay, and her is the indirect object. Indirect object employed to or for in front of him. Give her the book, do for me a favor, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रूल, द प्रोनाउन हु, दैट, विच बिगिंस विद सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ये तो बहुत ईजी है कि जब भी हु आएगा तो उसके पहले हमको देख लेना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसी तरह दैट के पहले भी हम देख लेंगे कि सब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी है। अब जैसे कन्फ्यूजन क्या होता है कि when I was teaching you that relative pronouns, when I was teaching you indefinite pronouns, that time I have told you, like you see the sentence, he is the only one of those men. Now you have to decide the subject. इसमें subject कौन सा है? He is the only one of those men. अब इसमें who किसके लिए आ रहा है? who किसको रिफर कर रहा है? इसमें देखो एक ही है, इसमें एक ओनली वन है, इसमें एक मैन है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हम कैसे इंडिकेट करेंगे? क्यों? इज़ लगाया है, इज़ लगाया है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि ही इज़ द ओनली वन, यानी कि वो, ये अकेला है उन सब आदमियों में, यानी इतने सारे लोगों में ये आदमी अकेला है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब प्रोवाइड किया इज़। और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज मैन, तो वन ऑफ दोज मैन यानी बहुत सारे आदमी हैं, है ना, ही इज़ वन ऑफ दोज मैन, तो वो उनमें से ही एक है, इन्हीं में से एक है, बहुत सारे हैं इनमें से एक है, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर लगा रहे हैं? आर। क्लियर? तो ये प्लूरल वर्ब है, तो इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो डोंट मिस्टेक द सब्जेक्ट। नाउ प्रोनाउंस दैट आर सिंगुलर, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हमारे? आई, ही, शी, और ये इंडेफिनेट में एवरीवन, एवरीबडी, एनीवे, पूरा हमने आपको सीक्वेंस बना के दिया है, समबडी, सम, ईदर, नीदर, ईच, सब।
सो दे रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। इन सब के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। द रूल इज फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड व्हेन यूजिंग प्रोनाउन ईच, आइदर, नीदर। अभी हमने जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया तो हमने इसका भी आपको क्लियर कर दिया। अब हम जब इसके बाद ऑफ आ जाता है, जैसे ईच ऑफ आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तब भी ये सिंगुलर ही लेगा। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो भी ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। डोंट गेट कंफ्यूज। ईच ऑफ द गर्ल्स सिंग्स वेल, ईदर ऑफ अस इज केपेबल, नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल। ओके, इसी तरह से when each follows a noun or pronoun in certain sentence, even experienced writer sometimes get। अब ये वाला सेंटेंस देखो, अब आपको देखना है द वुमन ईच। अब देखो ईच कहाँ आ रहा है, वुमन के बाद आ रहा है। पीछे हमने प्रैक्टिस किया था ना, ये गेव हर अप्रूवल, तो यहाँ पर क्या होगा, गेव हर अप्रूवल नहीं होगा, यहाँ पर हर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, द वुमन। द वुमन क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर। क्या आएगा, देयर। इसी तरह द वर्ड्स, वर्ड्स प्लूरल है, आर एंड देयर, ईच एंड्स विद अ साइलेंट। यहाँ भी गलत हो गया ये, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड। ठीक, ये कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ईच इज नॉट द सब्जेक्ट। इसलिए हमको ये देखना है कि ईच सब्जेक्ट नहीं है। ये नहीं कि हमने बोला कि अभी तो आपने बताया कि ऊपर ईच सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर आएगा। ओके, वो बिल्कुल सही है कि ईच सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ जब सब्जेक्ट के बाद ईच आ रहा है तो ईच सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, द वुमेन, और वुमेन प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगा। क्लियर? अब ये वाला रूल नंबर, टू डिसाइड वेदर टू यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आफ्टर, हाँ ये देन और एज, इसको हमने आपको पहले ही बताया था कि इसको आपको मेंटली इस सेंटेंस को करना होता है, आपको मेंटली बिल्डअप करना है। जैसे ट्रैन इज एज स्मार्ट एज हर, एज ट्रैन इज, शी नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्रैन इज एज स्मार्ट एज हर। जैसे हमने बोला, या तो हम बोले ट्रैन इज एज स्मार्ट एज शी इज, या तो ऐसे पूरा सेंटेंस बोलें। अब जैसे जोए इज टॉलर देन मी, टॉलर देन आई, क्या आएगा, आई। कंपैरेटिव है ना, ये हमने शुरू में किया था, टॉलर देन आई एम। क्लियर? तो ये वाले सेंटेंस को भी हमको देन और एज वाले सेंटेंसेस को ध्यान करना है। जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था तो ये पूरा बताया था। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो वंस अगेन। Okay, now the possessive pronouns. Whenever I tell you to write applications letter and I tell you don't put apostrophe in yours, this is the reason, because the possessive pronoun, it's already a possessive pronoun. yours अपने आप में ही possessive है। अब इसमें हम apostrophe लगा देंगे अगर, तो वो तो grammatically गलत हो गया ना। तो इसीलिए कभी भी ऐसे hers, yours कभी नहीं लिखना है, क्योंकि इसका her का मतलब क्या हो गया, he, she is का मतलब क्या हो गया, शी इज़ के लिए आएगा, शी इज़। ये हर्स और योर्स तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई निकलता नहीं है। क्योंकि जब हम बोलते हैं इट्स, तो इसका मतलब हो गया इट इज़। जब हम बोलते हैं हुज, इसका मतलब हु इज़। इसका कतई मतलब अपॉस्ट्रोफी से नहीं है, पोजेसिव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो अवॉइड वन सेल्फ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वन सेल्फ, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इट्स बीन अ कोल्ड मॉर्निंग, तो इट इज़ बीन, इट इज़ का मतलब है कि थर्मामीटर इतना। ही इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। ओके, सो नेवर यूज अपॉस्ट्रोफी इन योर्स, हिज, हर, इट्स, आवर्स, देयर्स, हुज। प्लीज चेक दिस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोनाउंस दैट एंड इन, ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये सब 9 है पूरे टोटल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनको सब्जेक्ट और वर्ब अकॉर्डिंगली लगाना है। और जैसे जॉ बॉट इट फॉर हिमसेल्फ, तो जॉ अपने लिए लाया। आई वर्कड माई सेल्फ, ठीक है, माई ब्रदर, माई सेल्फ एंड माई सेल्फ। अब देखो इसमें क्या गलती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको पता है कन्फ्यूजन और नॉनसेंस हटाने के लिए होते हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत हमको ध्यान रखना है, जैसे हमने कहा माई ब्रदर एंड माई सेल्फ, इसमें क्या गलत है। अब मैंने आपको क्या बोला कि माई ब्रदर जब आएगा, है ना, जब भी माई सेल्फ आएगा तो उसके संग उसका सब्जेक्ट आना जरूरी है। तो माई का सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है ना। तो या तो आई और माई सेल्फ दोनों आएंगे, या फिर माई सेल्फ नहीं आएगा। तो जैसे माई ब्रदर एंड माई सेल्फ डिड इट, ये गलत है। तो माई ब्रदर एंड आई डिड इट, ये समझ में आ गया क्यों गलती है ये। डोंट यूज माई सेल्फ अनलेस द प्रोनाउन आई और मी प्रीसीड्स इन द सेंटेंस। अब इसमें देखो, प्लीज गिव इट टू जॉन और माई सेल्फ, फिर से वही आ गया। अब माई सेल्फ हमने फिर लगा दिया, जबकि आई हमारे सेंटेंस में कहीं नहीं है, तो ये गलत है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमको ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, मी आएगा सीधा सीधा।
यू सॉ मी बीइंग माई सेल्फ, तुमने मुझे मेरे को देखा, ये भी गलत है, ठीक है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, मी और माई सेल्फ, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि यू सॉ मी बीइंग माई सेल्फ, तो मी है, मी माने मैं, और माई सेल्फ माने मैं खुद। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आएगा जब दोनों सेम वर्क को वो कर रहे होंगे, ठीक। द सेंटेंस लाइक हेल्प योर सेल्फ लुक्स लाइक ए एक्सेप्शन टू द until we realize it's shorthand for you may help yourself। ये जो help yourself कई बार लिखा रहता है होटल में कहीं पे भी कि do the service yourself, help yourself मतलब you do it yourself, इसमें you hidden है। ये जैसे आप वो वाला सेंटेंस पढ़ते हैं imperative sentences तो you hidden रहता है, तो it is that type only, ठीक है। इन सर्टेन केसेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ किसी केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो सकता है, जैसे डाउटिंग हिमसेल्फ, द मैन प्रोसीडेड कॉशियसली, ये मैन के लिए ही आ रहा है हिमसेल्फ, लेकिन ये शुरू में आ रहा है, ये डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है और ये एम्फेसिस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब यूज़ ऑफ दे और देयर, इनका बहुत इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हम बताएंगे, केवल आपको इतना बताएंगे कि दे और देयर जब भी अब इनका यूज़ करें बहुत ध्यान से करें। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, समवन हैज़ टू डू इट, ओके, समवन हैज़ टू डू इट, किसी ना किसी को तो उसको करना ही था, तो समवन हैज़, जब हम हैज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हम दे लगा रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस ऑकवर्ड लगेगा। अगर हम बोलेंगे कि समवन हैज़ टू डू इट एंड उसी में हम हैज़ ही लगाएं फिर से यहाँ पर, एंड ही हैज़ टू डू इट वेल, एंड ही हैज़ टू डू इट वेल, तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पर दे का यूज़ करते हैं। समवन हैज़ टू डू इट एंड हैज़ टू डू इट वेल, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है सेंटेंस, इसलिए हम दे का यूज़ कर देते हैं। तो ये दे और देयर में हमको ध्यान रखना है। ओके, व्हेन प्रोनाउन इज लिंक्ड बाय नाउन एंड मेंटली रिमूव एंड फ्रेज। अब देखो कई सेंटेंस में हर एंड, ये मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या है कि जैसे हर एंड हर फ्रेंड केम ओवर, तब आप इसमें एंड को हटा दीजिए और हर फ्रेंड को हटा दीजिए, क्या बचा, हर केम ओवर। अब देखो सेंटेंस कितना गलत लग रहा है, तो क्या होगा, शी केम ओवर, हर नहीं आएगा, क्या आएगा, एक तो ये सब्जेक्ट का स्थान है, सब्जेक्ट के स्थान पे हमने क्या लगा दिया, पोजेसिव लगा दिया, तो ये गलत है। जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे हमको शी लगाना है, तो शी एंड हर फ्रेंड केम ओवर। जैसे आई इन्वाइटेड ही, अब ये ऑब्जेक्ट का स्थान है, यहाँ पे हमने ही लगा दिया, क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट, हिम, आई इन्वाइटेड हिम एंड हिज, क्लियर। तो ये इस टाइप का, तो मैं आपको जैसे बताती हूँ कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लगाइए, यूज देम इन देयर करेक्ट प्लेस, देन ओनली द सेंटेंस विल बी करेक्ट। ओके, नाउ लास्ट वन, इफ़ टू पीपल पोजेस द सेम आइटम, दो ही लोग अगर सेम है, अब ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरीबल एंड माई होम, ठीक है, माइन एंड मेरीबल होम, ये सब गलत है कि मेरीबल्स एंड माई होम, तो माई होम बाद में आएगा, मेरीबल्स पहले आएगा, ठीक। ही एंड मेरीबल्स होम, हिम एंड मेरीबल्स होम, हिज एंड मेरीबल्स होम, अंडरस्टैंड। Demonstrate example, when one of the co-owners is written as a pronoun, use possessive my, your and avoid possessive pronouns। कभी भी mine, yours, her, ये कभी भी इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते कंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि इनके बाद हमारा नाउन नहीं आता है। डू नॉट कम्बाइन सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कंबाइन मत करिए, जैसे ही एंड आई है ना, ऐसे हर एंड आई गलत है, शी एंड आई क्या होगा, शी एंड आई। माइन, आवर्स, डोंट टेक नाउन आफ्टर देम। अब ये जो वाले प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पर कि माइन, आवर्स, इन सब के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स यूसेज। आई होप ऑल द videos are very clear to you, and still if you have any doubts, we will do the practice work from tomorrow. We will do the editing part of the pronouns, and I will tell you why the mistake is there and how to correct it. So keep watching. Thank you. Have a nice day.